Yes. Okay. Very good morning, students. So, in the Good last morning, sir. lecture, Good yes, morning. yes, yes. In the last lecture, we had seen the construction of spiral with the help of Archimedean method, right? Archimedean spiral method. Now, in this lecture, we are going to learn how to construct a spiral with the help of logarithmic spiral method, right? So now, for this logarithmic spiral method, I have one question written down in the my sketchbook. I hope all of you can see this question in your screen. That this question says that to construct a logarithmic spiral of one convolution. Now, until now, you all know what is the convolution, right? One convolution means one round. The length of shortest radius vector is 10 mm, right? This is the given data for our construction of logarithmic spiral. And the ratio of the length of successive radius vector is 9 by 8 for vectorial angle 30. Now, we have to see first of all that what is the ratio of this successive radius vectors and what is the vectorial angle and what is the shortest radius distance, right? For that, we have to just follow the few steps. So first of all, I am drawing one straight line like this and giving that line of names like O point and this is the B, right? Now my vectorial angle is 30 degree, right? So I have to draw one line at the 30 હેલો સર degree. Yes, yes. સર પેજ ઉપર કરો ને તો એજ ઉપર કરીશ તો હું કઈ રીતે ડ્રો કરીશ? ના સર બરોબર જ છે Yes. દેખાતું નથી સર દેખાતું નથી. I cannot zoom the page. But હા સર હવે I, દેખાણું દેખાણું yes. દેખાણું સર Now, દેખાણું સર yes. Okay. I'll just continue. Now, આપણી પાસે વેક્ટોરિયલ એંગલ જે છે 30 ડિગ્રી છે, રાઈટ? તો હું આ O પોઈન્ટ થી એક 30 ડિગ્રી ઉપર એક લાઈન ડ્રો કરીશ with the random length, right? This angle is 30 degree and end point જે છે એનું હું નામ આપીશ A, right? So આ આપણો એક વેક્ટોરિયલ એંગલ જે છે એ ડ્રો થઈ ગયેલો છે. Now what is the successive radius vector? And it is given as a 9 by 8, right? So before that we have to see that shortest radius vector is 10 mm and successive radius vector is 9 by 8 ratio from that 10 mm. So what we have to do, we have to find the distance of that shortest radius vector. So finding that vector, we have to just do mathematics that 9 divided by 8 multiply by shortest vector. So it is 9 divided by 8 multiplied by 10. So finally we will get our answer is 11 point. What is you will getting? I think you will get 25, right? So this is the distance in mm you will find 11.25. So we have to just mention this both distance in this OA line and OB line, right? So
on the OA line, you have to mention the first distance of 10 mm, right? In this case, for further or better understanding, I am just expanding these distances with the multiplication of 2. So in this sketchbook, I am drawing 20 mm. You will get the 10 mm, right? This is my 10 mm distance. I think you will all see this number. તમારે 10 mm જે ડિસ્ટન્સ છે એ મેઝર કરીને ડ્રો કરવાનું છે અને નીચેની સ્કેલ ઉપર તમારે 11.25, right? So I'll just get 22 point. 11.25 means 12.5. Okay, so this is 11.25 mm on the line AB, and એ જે બે પોઈન્ટ મળે છે એ બંને પોઈન્ટને તમારે એક સ્ટ્રેટ લાઈન થી જોઈન કરી દેવાના છે આ રીતે AO लाइन ऊपर 10 mm डिस्टेंस, AO लाइन जो है उसके ऊपर 10 mm डिस्टेंस जो आपका शॉर्टेस्ट रेडियस वेक्टर है, एंड OB लाइन पे आपने जो सक्सेसिव रेडियस वेक्टर का जो रेशियो जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने जो फाइंड आउट किया है 11.25, ये दोनों आपको मेजर करके इन दोनों लाइन पे आपको ड्रॉ करना है, राइट? अब बाकी के जो पॉइंट्स है वो आपको ऐसे ही मिलेंगे ऑन दिस दैट आपको क्या करना है, कंपास उठाना है, कंपास को पॉइंट O पे प्लेस करना है, एंड जो आपका 11.25 डिस्टेंस जो है तो उसको वहां से सर यस सर થોડુંક રિપીટ કરજો ને ઓલું 10 mm ને 11.25 નેટવર્ક ઇશ્યુ ને લીધે નથી સમજાણું. ओके, अगर आपका नेटवर्क इश्यू है तो आप वापस से जो रिकॉर्डिंग्स में अपलोड करूंगा उसमें भी देख पाएंगे, बट यहाँ पे एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ. आपको AO लाइन जो है उसके ऊपर शॉर्टेस्ट रेडियस वेक्टर का जो डिस्टेंस है 10 mm, उससे एक पॉइंट आपको ड्रॉ करना है, एंड OB लाइन जो है उसके ऊपर आपने जो ये फाइंड आउट किया है डिस्टेंस 9/8 मल्टीप्लाई बाय शॉर्टेस्ट वेक्टर डिस्टेंस 10, वो जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे मेजर करके पॉइंट फाइंड आउट करना है OB लाइन पे, एंड उन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, राइट? नाउ आपको O पॉइंट को सेंटर रख के ये जो 11.25 वाला OB, यस सर OA और OB लाइन तो हम रैंडम डिस्टेंस लेके ड्रॉ कर यस सकते यस हैं. यस OA एंड OB लाइन जो है रैंडम डिस्टेंस वाली लेंथ है, राइट? बट मैंने जिसमें डिस्टेंस है उसमें लिख दिया है कितना डिस्टेंस है कहाँ पे, राइट? अब आपको यहाँ से एक इस तरीके से एक आर्क लगानी है फ्रॉम द OB लाइन टू OA लाइन, टेकिंग सेंटर पॉइंट एज अ O, राइट? मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, राइट? एंड फिर आपको क्या करना है, आपको आपने जो ये जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन आपने जो ड्रॉ की है उस स्ट्रेट लाइन से पैरेलल लाइंस आपको ड्रॉ करनी है. फॉर एग्जांपल ये जो मेरी लाइन है उससे पैरेलल दूसरी लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है मुझे, राइट? लाइक दिस इज माय पैरेलल लाइन टू द फर्स्ट वन, राइट? नाउ यू हैव टू रिपीट द सेम स्टेप फर्दरली. टेक अ सेंटर पॉइंट O एंड यहाँ से आपको एक आर्क जनरेट करनी है लाइक दिस, एंड सेम ये जो आर्क आपने ड्रॉ की है मैं उसको पहले हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको दिखे अच्छे से, एंड देन उस आर्क को वो इस लाइन से एग्जैक्टली पैरेलल वो आर्क आपको वहां से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करनी है ऐसे. अब जब स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे तब आपको ध्यान रखना है नंबरिंग देना नहीं भूलना है.
ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है P0 पॉइंट है, और यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट मिला है वो P0 डैश पॉइंट है, राइट। अब फर्दरली जो सेकंड पॉइंट आपने फाइंड आउट किया है, यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे भी 1 पॉइंट, बट 1 डैश पॉइंट। यहाँ पे अभी जो हमने फाइंड आउट किया सेकंड पॉइंट है, और दिस इज 2 डैश पॉइंट, राइट। अब आपको सेम स्टेप वापस से रिपीट करना है। टेक अ सेंटर पॉइंट O from the 2 dash point. You have to just draw the arc up to line AO, right, like this. I'll just highlight that line, and वो जो पॉइंट मिला उसको नंबर देना C, right? And from that C point you have to just draw straight line parallel to the previous one, like this. And ये जो end point मिला उसको C dash name देना. Similarly, again from the point 0, taking center point 0 and starting from 3 dash, you have to just draw one arc like this. I'll just highlight the arc, and वो जो point मिला उस point को आप नंबरिंग देंगे 4, right? और वहां से वापस से एक straight line parallel to the previous one, and नीचे जो point मिला उसको आप नाम देंगे 4 dash. ये स्टेप जो है आपको रिपीट करने हैं अप टू 12, राइट। यहाँ अभी मैं 4 पे पहुंचा हूँ, तो वापस से ये जो स्ट्रेट आर्क ड्रॉ करूंगा फ्रॉम द 4 डैश पॉइंट लाइक दिस। इसको नेम दूंगा 5, फिर वहां से स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रीवियस वन, एंड इसको नेम दूंगा 5 डैश। अगेन repeat the step from the 5 dash, draw one arc, give the number 6, and just highlight that arc first, and draw the parallel line to the previous one, and give the name 6 dash. I hope सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। Again repeat the same Yes, step. sir. Yes, repeat the same step. ये जो steps है आपको up to the 12th point आपको ये step जो है वो repeat करने हैं जब तक आप 12th point आपको मिल ना जाए, right? ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं थोड़ा क्विकली कंप्लीट करने की ट्राई करता हूँ। डैश जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आपका जो आर्क है वो बड़ा होता जाएगा और डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसीलिए आपको जब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई दिख नहीं रहा है, वो अब आपको अच्छे से डिफरेंस दिखेगा। This is 10th point. ये जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है और ये इस यूनिट का, एंड
कैनवास जो है अपना, इसके अंदर मैंने क्विज जो असाइनमेंट 2 जो है तो सबको विजिबल कर दिया है। सो जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपको वो असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, राइट? सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। मैं 11th पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। ओनली 1 पॉइंट इज रिमेनिंग। आई होप ये 12th पॉइंट जो है उसमें स्केल में आ जाए। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। स्केल में आ जाएगा। आ तो गया है, थोड़ा सा बाहर गया है, तो इस लाइन को मैं थोड़ी एक्सटेंड कर देता हूँ। यस, so finally I'll get my final point, that is 12 dash, right? इस तरीके से आपको एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। अब इस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम अपना जो स्पाइरल है वो ड्रॉ करेंगे, राइट? अभी तक जो कर रहे थे वो हमारी प्रिपरेशन थी स्पाइरल ड्रॉ करने के लिए। अब हम हमारा फाइनल जो ड्राइंग है स्पाइरल वो ड्रॉ करने जाएंगे यहाँ पे। तो आई होप ये जो डिस्टेंसेस है तो इजीली आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ, एंड उस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ। जिसको मैं नेम दे रहा हूँ पॉइंट ओ, राइट? अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट में से 12 लाइंस बाहर निकालनी है। ये आपको एज्यूम करना है कि पॉइंट ओ है, एक सर्कल का सेंटर पॉइंट है, और मुझे उस सर्कल के 12 इक्वल पार्ट्स बनाना है। तो मुझे एग्जैक्टली 30 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, राइट? लाइक दिस आई विल जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द full 30 line, this line. First of all, this is the 1, 30, 60, 90, 120, 150, and this is my straight line. And similarly, at the bottom side, thirty, 60, 90, 120, 150, 180 is the straight, right? तो मैंने एक एज्यूम किया है कि एक सर्कल है जिसको मैंने एग्जैक्टली 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस विद दिस पॉइंट। ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप वो एक बहुत ही लाइट होनी चाहिए, क्योंकि उसको भी आपको एग्जैक्टली ये जो लाइंस है उसको रब भी करना पड़ेगा। मैं बहुत ही लाइट लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ purposely, only for my reference, right? Now what we have to do, first of all we just have to draw sorry, we have to take our compass first of all and measure from this this construction reference AO line। सबसे पहले हम
पॉइंट P0 जो है उसको मेजर करेंगे कंपास में। ऐसे दिख रहा है सबको? जैसे ही कंपास में मेजर हो गया, आपको जो ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है उसमें आर्क लगानी है एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल। तो आपको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, राइट। ये जो पॉइंट होगा वो एग्जैक्टली 10 mm होगा, राइट। एंड उसको आप नेम देना है P0। मैं उस लाइन को, चलो हाईलाइट नहीं करते हैं अभी। अभी क्या करना है, आपको वापस से यहाँ पे आना है। अब आपको PO पॉइंट से 1 पॉइंट जो है आपका P1 पॉइंट, उसको मेजर करना है कंपास में। एंड ये जो आपने 30 डिग्री एंगल पे जो लाइन बनाई है फर्स्ट लाइन, वहां पे उसको आर्क जो है वो कट करना है 30 डिग्री एंगल वाली लाइन पे। एंड वहां पे आपको उसको नेम देना है P1। दिस इज माय P0, दिस इज माय P1। अब सिमिलरली आपको वापस सेकंड पॉइंट लेना है O पॉइंट टू पॉइंट P2। वो जो है स्ट्रेट लाइन पे, उसको मेजर करना है। एंड आपने जो अगेन दूसरी सेकंड 30 डिग्री पे लाइन बनेगी, टोटल 60 डिग्री वहां पे ड्रॉ करना है पॉइंट। एंड उस पॉइंट को नेम देना P2। सॉरी। अब आपको वापस सेम स्टेप रिपीट करने हैं। टेक द डिस्टेंस O to point C। अब 90 डिग्री जो एंगल है वहां पे हर कप को लगानी है। एंड वो जो पॉइंट है उसको आपको नेम देना है P3। सिमिलरली फॉर द फोर्थ पॉइंट मेजर कीजिए A1 लाइन पे, AO लाइन पे, और यहाँ पे फ्रॉम द 0 120 डिग्री एंगल जो है आपका, वहां पे उसको आर्क जो है वो ड्रॉ करनी है। और उस पॉइंट को ले लेना है P4। राइट। अब अगेन फॉर द P5 पॉइंट मेजर कीजिए। एंड अगेन 30 डिग्री एंगल बढ़ा के जो आपकी लाइन आ रही है 150 डिग्री एंगल पे, वहां पे उस पॉइंट को ड्रॉ कीजिए। एंड उस पॉइंट को नाम दीजिए P। अगेन नेक्स्ट पॉइंट P6 पॉइंट, take it from the 0 एंड जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आप वापस आ जाओगे लेफ्ट साइड, वहां पे पॉइंट ड्रॉ कीजिए एंड उसको नेम दीजिए P6 पॉइंट। सिमिलरली rest of the points you have to just draw O7 यहाँ से लेके O7 को ड्रॉ कीजिए इस एंगल पे 7 पॉइंट। अगेन AO डिस्टेंस, सॉरी O8, देन वो जो डिस्टेंस है उसको मार्क कीजिए। यहाँ पे पॉइंट दीजिए नंबर P8
थोड़ी स्ट्रेट लाइंस जो है वो रेफरेंस वाली मुझे थोड़ी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। डिस्टेंस जो है अभी बढ़ रहा है। तो अभी 0.9 की बारी है। एंड 0.9 को एग्जैक्टली वर्टिकल डाउनवर्ड साइड मुझे ड्रॉ करना है लाइक दिस। एंड नाम लीजिए P9, राइट। नाउ फर्दरली 0.10 अगेन 30 डिग्री एंगल बढ़ा के आर्क लगाइए, उस पॉइंट को नंबर दीजिए P10। अगेन 11th पॉइंट on this, so you will get your P11 point here, and finally the last point P12 to O। जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स जो है फाइंड आउट कर लिए फ्रॉम P0 टू P12। अब आपको सिर्फ उसको फ्री हैंडेडली सबको ज्वाइन करना है, राइट। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ ज्वाइनिंग। रिमेम्बर ये जो सारे पॉइंट्स है उसको आपको फ्री हैंडेडली ज्वाइन करना है। तो ये जो हुआ आपका स्पाइरल जो है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक स्पाइरल मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। अब इसमें किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क। हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। यस, किसी को कुछ डाउट है इसमें देन प्लीज आस्क। नो सर, नो डाउट। नो डाउट, राइट। सबको अच्छे से समझ में आ गया लग रहा है कि किसी को कुछ डाउट? हेलो सर। यस यस सर 8 पॉइंट लेके भी कर सकते हैं ना? यस, यू कैन टेक द 8 पॉइंट ऑल्सो, बट आपको ध्यान रखना अगर आपने यहाँ पे 8 पॉइंट लिए हैं दिस ए ओ लाइन पे, देन ये जो आप सर्कल बना रहे हो वहां पे भी 12 की जगह पे 8 पॉइंट डिवीजन हो। तो अगर 8 पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं तो ये स्पाइरल का थोड़ा कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, राइट। तो लॉगरिथमिक मेथड के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 12 पॉइंट लीजिए। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको 12 पॉइंट ही लेने हैं। यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स, यू कैन टेक 16 नंबर, यू कैन टेक 9, यू कैन टेक 10, बट जो भी आप नंबर ले रहे हो इसके हिसाब से आपको ये सर्कल के डिवीजन एंगल में करने हैं, राइट। मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट इसलिए लिए है कि 30 डिग्री एंगल पे मैं अच्छे से ड्रॉ कर सकता हूँ सारे पॉइंट्स को। तो मैंने 12 पॉइंट लिए, राइट। आप ही देखिए, अगर मैं 8 पॉइंट ही लूंगा तो मेरा स्पाइरल यहाँ तक ही रहेगा, यहाँ तक का ही रहेगा, ये 8 पॉइंट इतना आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा, ये स्पाइरल यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसकी जो लेंथ रहेगी वो छोटी हो जाएगी, अच्छे से वो दिख नहीं पाएगा, राइट। तो अगर 12 पॉइंट ले रहे तो अच्छे से दिखेगा। हाँ, अगर 16 पॉइंट ले रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना कि 16 पॉइंट बहुत आगे जाएंगे। स्केच बुक में आपकी अगर
आप आएंगे कि नहीं वो आपके चेकबुक के लेंथ के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको, राइट? So I recommended that you will always divide the circle into 12 equal parts for the logarithmic spiral method. Okay. अब अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कार्तिक, you want to say something? नीचे कीजिए तो ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सकें। Okay. कम Yes, yes. I'll just ऐसे नहीं हो पाएगा तो आई थिंक इसको हॉरिजॉन्टली रख रहा हूँ चेकबुक को, आप अच्छे से उसको शुरू से स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। Now you can take the screenshot if you want and draw and practice yourself in the sketchbook at your home. So by completing this method हमने जो यूनिट 3 जो है हमारा वो कंप्लीट कर लिया है। आपके yes part the background noise is very high. If you want to say something, please say. Okay, no problem. So completing by this method हमने हमारा यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 3 is completed from our phone. So मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा मेरी। तो अब यूनिट 3 जो है आपका, वहाँ पे मैंने असाइनमेंट 2 जो है आपको अलॉट कर दिया है। आप सब लोगों को ध्यान से असाइनमेंट 2 जो है देख के इसके जो सारे क्वेश्चन है स्केच बुक में आपको ड्रॉ करने हैं एंड यहाँ पे आपको ऑनलाइन फाइल अपलोड मेथड से अपलोड करने हैं, राइट? जैसे आपने असाइनमेंट 1 अपलोड किया था ना, वैसे ही अपना टाइम लेके प्रैक्टिस करके सारा ड्राइंग जो है सारे वो कंप्लीट करके वो असाइनमेंट 2 के अंदर सबमिट करने हैं। तब आपको टाइम मिली है, राइट? ऐसा कोई मैंने डेडलाइन अभी फिक्स नहीं की है असाइनमेंट 2 की, तो यू कैन टेक योर टाइम to understand and learn all the codes, and then you can draw and submit this assignment 2, right? In the unit 3 engineering code. So with this our session is also completed for today. I am stopping my recording.